ओके, तो देखिए गाइस, आज हम लोग जो करेंगे इंटीग्रेशन में, आज काफी इम्पोर्टेंट चीज है। और अब ये 2 या 3 क्लासेस में मैं सारा एक्स्ट्रा ही पढ़ाऊंगा, समझिएगा जरा। ये है हमारा इंटीग्रेशन, हम लोग करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा फॉर्म्स हैं, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म मैं लिख रहा हूं, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म dx बाय a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x, या ऐसा भी हो सकता है dx बाय a प्लस b cos स्क्वायर x भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है dx बाय b प्लस a साइन स्क्वायर x भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है dx बाय a प्लस b साइन स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x, या ऐसा भी हो सकता है a साइन x प्लस b cos x का होल स्क्वायर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे डील करेंगे वो समझना जरूरी है। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फॉर्म्स का। तो आई विल बी डिस्कसिंग दैट हाउ टू डील सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड व्हाट इज द ट्रिक। ठीक है, वो जरा आराम से समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैं इसी से रिलेटेड के क्वेश्चन के फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि जी इंटीग्रेट करो dx अपॉन 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 8 cos स्क्वायर एक्स। ये इसी फॉर्म का क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे इसमें, व्हाट इज द स्टेप? देयर आर टू वे। नंबर 1, डिवाइडिंग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आइदर बाय cos स्क्वायर एक्स और बाय sin स्क्वायर एक्स। मैं cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर रहा हूं। सी, if I divide it, what is going to happen? My numerator will become sec square x, and now this 1 will become sec square x because 1 by cos square x, 3 tan square x plus 8. Is that okay? Please tell me. Any problem? No, sir. Can I write this as sec square x, and this sec square x is 1 plus tan square x plus 3 tan square x plus 8. What I will do here now, put tan x equal to t. Put tan x is equal to t. What is the derivative of tan x? Sec square x dx equal to dt. So my numerator will become dt upon 1 plus t square plus 3t square plus 8. Now it is a question of completing the square. Dt by 4t square plus 9. Is that okay? Can I write this as dt by 2t whole square plus 3 square? Is that okay? Now we had studied the formula dx by x square plus a square, that is equal to 1 by a tan inverse x by a. So your final answer will be equal to 1 by 3 tan inverse 2t by 3 plus c, and divide by coefficient of t, that is by 2. So your answer will be 1 by 6 tan inverse of 2, क्या था यहाँ पर, cos square x, sorry tan x by 3 plus c. That is the answer. Is that okay? ये सबको समझ में आया भाई? पहले तो मुझे बताओ, प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट लो पहले यहां तक का। डन? प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. इससे आगे वाला भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। डन? Yes, sir. Okay. Now one more question. Suppose the question is integrate
dx बाय, ध्यान से समझना भाई, 3 plus 4 cos square x. What I will do here, directly dividing numerator and denominator by cos square x. Once you divide it, your numerator will become sec square x. It will become 3 sec square x plus 4. Now, this sec square x in the denominator can be written as 1 plus tan square x. Is that okay? Please tell me. Clear है बेटा? Yes, sir. Again I will do, that is put tan x equal to t. What is the derivative of tan x? Sec square x dx is equal to dt. It is dt by 3 plus 3t square plus 4. Can I write this as dt by 3t square plus 7, which is further equal to dt by root 3t whole square plus root 7 square. Is that okay? Now again we'll use the formula dx by x square plus a square is 1 by a tan inverse x by a. Now my answer will be equal to 1 by root 7 tan inverse of root 3t by root 7 plus c, and we will divide by root 3. That is equal to 1 by root 21 tan inverse of root 3 into I think it was tan theta or tan x. We have taken theta or tan x, sorry, by root 7 plus c. Clear है बेटा? Please tell me. Yes, sir. So please take the screenshot of it. समझ में आया? Please reply करिए. Yes, sir. Yes, sir. Now, one more question that I want to discuss with you. Now see. There is a famous question. कहता है integrate sin 2x upon sin raised to power 4x plus cos raised to power 4x dx. It is a very good question. What I will do here, एक बात का ध्यान रखना, कोशिश ये करना जब भी आप डिवाइड करो साइन या कोस की इवन पावर से करो और हाईएस्ट पावर से. तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं जरा ध्यान से देख लीजिएगा. व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, डिवाइडिंग numerator and denominator by cos raised to power 4x. Now see what is going to happen. It will be 2 tan x and sec square x. लिख सकता हूं? प्लीज टेल मी. बताओ भाई, क्लियर है वाली बात? क्योंकि साइन बाय कोस tan बन गया, एक कोस कैंसिल हो गया, तो 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स बन गया. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. Yes, sir. Yes, sir. Now what I will do here now, can I write this as tan square x का whole square plus 1. Now put tan square x equal to t. What is the derivative of tan square x? 2 tan x sec square x dx आपका क्या बन गया? dt. Now the question is dt by t square plus 1. So its answer is tan inverse t. Is that okay? Please tell me. क्लियर बेटा? Yes, sir. देखिए क्वेश्चन को लॉजिक से खत्म करना, बिगर लॉजिक से क्वेश्चन खत्म नहीं होते हैं. डन? हो गया? बताइए भाई, हो गया या नहीं हो गया? Yes. Yes, sir. नेक्स्ट वन देखिए, कहता है इंटीग्रेट sin x अपॉन sin 3x
See how we are going to simplify this. Use the formula of sin 3x. क्या होता है sin 3x का फॉर्मूला? 3 sin x minus 4 sin cube x. तो sin x एक कैंसिल हो जाएगा यहां से. So what we left? Is that okay? Please tell me. Clear है भाई? Yes, sir. Now dividing by cos square x. तो ऊपर कितना आएगा? sec square x. यहाँ कितना आएगा? 3 sec square x. यहाँ 4 tan square x. Is that okay? मैं चाहता तो sin square x से भी कर सकता था. इसको लिख लूंगा 3 into 1 plus tan square x minus 4 tan square x dx. Put tan x equal to t. Put tan x is equal to t. क्या आएगा tan x का डेरिवेटिव? sec square x dx is equal to dt. तो क्या बन गया भाई? dt by 3 plus 3t square minus 4t square. So can we write this as dt by 3 minus t square? Is that okay? Which is equal to dt by root 3 का square minus t square. Now we will be using the identity dx by a square minus x square that is equal to 1 by 2a. क्या आता है इस आइडेंटिटी में बताओगे जरा? a plus x upon a minus x. Is that okay? 1 by 2 root 3 log root 3 plus t upon root 3 minus t plus c. t का वैल्यू डाल दीजिए. तो रूट 3 प्लस tan x अपॉन रूट 3 माइनस tan x प्लस c. क्लियर है बेटा सबको? प्लीज टेल मी. Yes, sir. इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. डन? हाँ जी, हो गया. Yes, sir. Yes, sir. Now let us come to the another form. चलो कुछ और इंटरेस्टिंग सिखाते हैं आपको. Now we have another form that is what we call लखन function. बताया था ना मैंने, लखन इंटीग्रल बोलेंगे इसको, लखन इंटीग्रल. ये मेरी तरफ से ही इन्वेंटेड है. समझिए, हम एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन करके दिखाएंगे आपको, और ट्रिक समझना. जैसे नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ x square plus 1 upon x raised to power 4 plus 1, integration of x square minus 1 upon x raised to power 4 plus 1 dx, integration of dx upon x raised to power 4 plus 1, and integration of dx upon x raised to power 4 plus x square plus 1. अगर मैं एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन कर दूं तो कैसा लगेगा आपको? आप ही बताइए. समझना ट्रिक क्या है. मैं पहला क्वेश्चन डील कर रहा हूं. पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ट्रिक है, ध्यान से समझ लेना. डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर. किससे डिवाइड करोगे भाई? एक्स स्क्वायर से. तो आपके पास आ गया 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर. ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर. इज दैट ओके? कोई दिक्कत यहां तक? प्लीज टेल मी. बताइए भाई. No, sir. No, एक sir. एक काम करिए, जो ऊपर न्यूमरेटर में जो टर्म बैठी है ना,
जो न्यूमरेटर में टर्म बैठी है इसका चुपके से इंटीग्रेशन एक तरफ कर लो। क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन बताओगे? x माइनस 1/x। आर यू गेटिंग इट? यही आएगा 1 का x और 1/x स्क्वायर का माइनस 1/x आएगा। या दूसरा तरीका क्या है, ऊपर प्लस है ना तो नीचे माइनस ले लेना। तो हमने क्या किया, x माइनस 1/x को t मान लिया। जरा एक काम करो, सबसे पहले तो एक काम करो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यही आएगा। अब कहोगे सर इससे क्या फायदा होगा, बताएंगे। इस क्वांटिटी का स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग करके क्या मिलेगा? क्या मिल गया आप ही बताओ? टी स्क्वायर प्लस 2 मिल गया। बोलो जी। तो क्वेश्चन क्या बन गया आपका? dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2। इज दैट ओके? क्लियर है ये वाली बात? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये रूट इसमें लग गया फॉर्मूला 1/a दैट इज √2 tan इनवर्स t by √2। What is the value of t now? Just tell me. X minus 1/x. लॉजिक समझ में आया? बोलो जी। Yes, sir. पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो, अब इसी से सब कुछ सोल्व करके दिखाएंगे आपको। लॉजिक पकड़ में आया? क्या था लॉजिक, बताओ भाई। Yes, sir. चलो और देखिएगा, अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1। अगेन आई विल डू द सेम टैक्टिस, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। करो, कितना आएगा बोलो भाई, जी आ रहा है? अब लॉजिक क्या है आप ही बताओ, जल्दी बोलो, बोलो जल्दी। Sir, x plus 1/x को t ले लेंगे। इसका इंटीग्रेशन को टी मान लेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यही आएगा। इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा वो भी देखो, जरा करो तो स्क्वायरिंग पार्ट। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, टी स्क्वायर माइनस 2। तो सब्स्टिट्यूट करो, क्वेश्चन क्या बन के आ गया, dt बाय टी स्क्वायर माइनस 2। तो नाउ दिस क्वेश्चन विल बी सोल्व्ड लाइक दिस, टी स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, विल यूज द फॉर्मूला दैट इज 1/2 a दैट इज √2 log क्या आएगा, t माइनस √2 अपॉन t प्लस √2। इज दैट ओके? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t भाई? x plus 1/x. x प्लस है, रूट क्यों कर रहा हूं यार मैं, इट इज x प्लस 1/x। समझ में आया? बोलो जी, सोल्व हो गया? Yes, sir. ओके अगला देखिएगा, अब आपकी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, क्या क्वेश्चन है, dx बाई एक्स की पावर 4 प्लस 1, यही है ना, नजर आ रहा है? क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूं, जरा ध्यान से देखना, जादू करते हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 1/2. कैन आई राइट दिस वे? प्लीज टेल मी. बताओ भाई, कैन आई राइट? रिप्लाई करो भाई. Yes, sir. अब बताओ क्या बन गया क्वेश्चन. क्या इन दोनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन तो लिखना है? अभी यही दोनों क्वेश्चन कराए हमने. Yes, sir. Yes, sir. ये पहला क्वेश्चन था और ये दूसरा क्वेश्चन था. इन दोनों के सॉल्यूशन हम कर चुके हैं. विल यू बी एबल टू राइट? सर ऐसे Yes, sir. क्वेश्चन ऐसा टाइप हमें एक क्वेश्चन के अंदर ही आ सकता है, फिर अलग से ऐसा क्वेश्चन आएगा? अलग से आएगा भाई, ऐसे थोड़ी आएगा. मैं तो समझा रहा हूँ, अब मेरा काम समझाने का. अब आगे सॉल्यूशन में 2 का दे चुका हूँ, उसको दोबारा थोड़ी लिखूंगा. अब अगला देखो. नहीं सर, इसमें जैसे दोनों का करना पड़ेगा ना बाद में फिर. तो एक का कैसे करोगे? दोनों का करोगे. तो dx यस बाय सर. अगला है x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1. ये भी ऐसे ही होगा 1/2 प्लस बिल्कुल सिमिलर उससे जाएगा. ठीक है, तो कैन वी राइट दिस एज 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन. इज दैट ओके? क्लियर है भाई? बोलो. यस सर. पहले में भी डिवाइड करो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर. इसको भी डिवाइड करो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर. करोगे तो क्या आएगा? 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर. ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. ये कितना आएगा? क्लियर है भाई? इस वाले में क्या करेंगे? सेम टैक्टिस. x माइनस 1 बाई एक्स को t मान लो. इसमें x प्लस 1 बाई एक्स को z मान लो. क्या आएगा? 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt. और स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आएगा? क्लियर है? तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 प्लस टी स्क्वायर. सिमिलर वे से हो रहा भाई, ध्यान से देख लेना. इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? 1 बाय ये dz आ जाएगा. स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आएगा? इस जेड स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 2. तो सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा? देखो जरा, आपका क्वेश्चन हो जाएगा 1/2. ऊपर क्या आ जाएगा? बताओ जल्दी. dt. और नीचे क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर प्लस 3. 1/2 ये आ जाएगा dt बाय dz बाय सॉरी. आपके पास बन जाएगा ये जेड स्क्वायर माइनस 1. कर पाओगे इसको अब आगे? विल यू बी एबल टू इंटीग्रेट इट फर्दर? Yes, sir. तो आप बताओ जरा, इसका सही नाम है लखन इंटीग्रल. एक ट्रिक से 4 क्वेश्चन हुए या नहीं हुए? Yes, sir. चलो इसका दूसरा पार्ट भी बता रहे लखन वाला. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. समझ में आया मेथड? हाँ जी, याद रहेंगे ये चारों इंटीग्रल? Yes, sir. Yes, sir. चलो एक और ट्रिक खेलते हैं आपके साथ, समझिएगा. पहला क्वेश्चन कहता जी इंटीग्रेट साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन 2x.
cos x minus sin x under root of sin 2x. Number 3, integration of under root tan x plus under root cot x. Number 4, integration of root tan x. Number 5, अंडर रूट ऑफ कोट एक्स. अगर एक ट्रिक से 5 क्वेश्चन निकल जाए तो कैसा लगेगा, आप ही बताओ. हाँ जी, करे डिस्कस, बोलो भाई. Yes, sir. देखो जरा ध्यान से, पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स बाय रूट ऑफ साइन 2x. बात को जरा ध्यान से समझ लीजिएगा. एक बात बताइए, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा इस वाली टर्म का? कोस एक्स माइनस साइन एक्स आएगा, उसको टी मान लीजिए. कोस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू टी ले लिया भाई, या साइन या उल्टा ले लो, ऊपर प्लस है ना, ऐसे ले लो. देखो आपको रीजन बता रहा हूं, साइन एक्स माइनस कोस एक्स को टी ले लिया डेलिबरेटली. ऊपर प्लस है तो माइनस. अब इसका स्क्वायरिंग करो, जरा बताओ स्क्वायरिंग क्या आएगा. साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. 1 माइनस साइन 2x किसके बराबर आया? टी स्क्वायर के. तो 1 माइनस टी स्क्वायर किसके बराबर आया? साइन 2x. तो इसमें किसको टी मान लोगे? साइन एक्स माइनस कोस एक्स को टी मान लो. तो पुट इसको टी मान ही रखा है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. आ गया भाई? प्लीज टेल मी. तो क्वेश्चन क्या बन गया? डी टी बाय रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर. इज दैट ओके? क्या आएगा आंसर? साइन इनवर्स टी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी? टी का वैल्यू क्या है भाई? साइन एक्स माइनस Sin कोस. x minus cos x. आंसर आ गया. ट्रिक समझ में आई? अगला देखिए, अगर आप सेकंड क्वेश्चन देखेंगे तो वो है कोस एक्स माइनस साइन एक्स बाय अंडर रूट ऑफ साइन 2x. तो इसमें क्या करेंगे? प्लस वाले को टी मानेंगे, डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? यही आएगा. देखिए कोस का तो माइनस साइन आ जाएगा, प्लस कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी. स्क्वायरिंग कर लें इसका. स्क्वायरिंग करने पर क्या आएगा? कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर. तो 1 प्लस साइन 2x किसके बराबर आया? टी स्क्वायर के. तो साइन 2x किसके बराबर आ गया? टी स्क्वायर माइनस 1. तो क्वेश्चन बन गया डी टी बाय अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर T माइनस square 1. minus 1. तो कितना आ जाएगा? लॉग मोड टी प्लस रूट टी स्क्वायर माइनस 1. टी की वैल्यू रख दीजिएगा. लॉजिक समझ में आया? प्लीज टेल मी. Yes, sir. फिर आप पूछोगे कि सर इसका कैसे करें? अंडर रूट टेन एक्स प्लस अंडर रूट कोट एक्स दे रखा है. ये साइन बाई कोस में ब्रेक कर सकते हैं भाई? बताओ जरा, प्लीज टेल मी. हो गया? कितना आएगा? साइन एक्स प्लस कोस एक्स, रूट हट जाएगा और रूट में कोस एक्स साइन एक्स. यहाँ 2 से मल्टीप्लाई तो बाहर रूट 2 आ जाएगा. बताओ कौन सा क्वेश्चन बन गया? प्लीज टेल मी विच क्वेश्चन इट इज. Second वाला. फर्स्ट वाला बन गया. ये फर्स्ट क्वेश्चन बन गया या नहीं बन गया? आप ही बताओ.
क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. फिर किसी ने पूछा कि सर रूट 10x का कैसे करेंगे? देखो जी, रूट 10x को भी करके दिखा रहे हैं। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकता हूं? जल्दी बोलो। Yes, sir. प्लस रूट कोट एक्स कर लिया और प्लस रूट 10x माइनस रूट कोट एक्स कर लिया। कर सकता हूं ऐसे? प्लीज टेल मी। बोलो जी। Yes, sir. ये हो गया। अब देखो भाई, ये एलसीएम लेके मन मन में करना सारी चीजें। इसमें ये फर्स्ट और टू दोनों क्वेश्चन बनेंगे, फर्स्ट और सेकंड। कैसे बनेगा देखो, ये तो बन जाएगा cos x प्लस साइन एक्स बाय साइन एक्स cos x, जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ रूट 2 ले लेंगे। ठीक है जी। और अगले वाले में अगर जब आप एलसीएम लेंगे तो बनेगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स। सही कह रहा हूं मैं? बोलो भाई। 2 से मल्टीप्लाई, ये रूट 2, तो रूट 2 बाई 2 कितना आ जाएगा? 1 बाई रूट 2। अब कौन से क्वेश्चन बन गए आपके, बताओ जरा भाई। ये फर्स्ट और सेकंड बन गए या नहीं बन गए? Yes, sir. तो क्या कर पाओगे इसको? Yes, sir. तो अब आप बताओ, क्या ये वाक्य में अल्टीमेट चीज नहीं थी क्या? स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करो, इसका ले लीजिए। डन? डन भाई? जल्दी बोलो, ले लिया स्क्रीनशॉट भाई? Yes, sir. इससे ऊपर वाले का भी ले लो। डन? इससे ऊपर वाले का भी ले लो। डन? डन? Yes, sir. ओके। ये सारी चीजें रिवाइज करके रखना। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ कराऊंगा। ये सारी चीजें समझ में आई सबको भाई? पहले तो मुझे ये बताइए, Yes, sir. इंटरेस्टिंग, मुश्किल तो नहीं था? No, sir. इससे रिलेटेड क्वेश्चन भेज रहा हूं मैं आप लोगों को, वो करने हैं। ठीक है जी।